IGS. In our today's session, we are discussing about the topic from biology, and the name of the topic is the level of organization. How the organization of body is basically depend upon. Okay. अच्छा, यहाँ पर हमारे पास बेसिकली देयर आर डिफरेंट लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल एटॉमिक लेवल. हम सबसे पहले क्या करते हैं, हमारे पास सबसे पहले एटॉमिक लेवल आता है. एटॉमिक लेवल पे हम डिस्कस करते हैं बेसिकली देयर आर 118 एलिमेंट्स ओवर हियर. ओके, अब इन 118 एलिमेंट्स में से अमंग these 118 elements there are 16 elements which is considered as the bio elements. ओके, ये बायो एलिमेंट्स क्यों कहलाते हैं, क्योंकि ये इससे जो है वो अमूमन लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी जो है वो कंपोज होती है इन 16 एलिमेंट्स से. ओके, उन 16 एलिमेंट्स में भी there are basic elements which is carbon, hydrogen, oxygen, nitrogen, sulfur and phosphorus. Okay, these are considered the basic elements. अच्छा, अब यहाँ पर हमारे पास क्या है, सबसे पहले एटॉमिक लेवल आता है जिसमें हमारे पास एलिमेंट्स होते हैं, एटम होते हैं. एटम के बारे में आप पढ़ चुके हैं कि हमारे पास एटम जो है वो सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल है किसी भी मैटर का. ओके, और एटम जो है वो बेसिकली 3 सब एटॉमिक पार्टिकल से मिलकर बनता है एंड दीज आर बेसिकली इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स. ओके, नाउ मूविंग टू आवर सेकंड लेवल व्हिच इज मॉलिक्यूलर लेवल. Molecular level is basically when atoms, different atoms are combined, atoms of different elements when combined together they can form molecules. Okay, and molecules are of two types, micromolecules and macromolecules. When we talk about the micromolecules like amino acid, fatty acid, carbohydrate, okay, simple sugar, glucose like, okay, they are basically considered as the micromolecules. Okay, and when we talk about the macromolecules, so basically proteins, carbohydrate like starch, cellulose, glycogen, and fats, lipids, they all are considered as the macromolecules. A body of any organism basically made up of these macromolecules, and these macromolecules come from the combining of micromolecules. And micromolecules, how micromolecules can form, basically they are formed by the combination of different elements, different atoms of different elements. Okay, now move to the cellular level. Okay, these two level, first atom. देखिए यहाँ पर हमारे पास जो है वो एटॉमिक लेवल, ये हमने जो है वो टेबुलेशन फॉर्म में जो है वो बनाया हुआ है, और यहाँ पर हम जो है वो इसको सब्जेक्टिवली जो है वो डिस्क्राइब कर रहे हैं. तो सबसे पहले एटम, एटम के बाद मॉलिक्यूल्स, ठीक है, मॉलिक्यूल्स के बाद हमारे पास मैक्रोमॉलिक्यूल्स आते हैं, फिर हम बढ़ते हैं अपने सेलुलर लेवल पर. अच्छा, यहाँ पर सेलुलर लेवल पर क्या होता है हमारे पास कि डिफरेंट बायोमॉलिक्यूल्स जब एक ही प्लेटफॉर्म पर काम कर रहे होते हैं, मीन व्हेन दे वर्क टुगेदर दे कैन फॉर्म प्रोटोप्लाज्म. ओके, एंड प्रोटोप्लाज्म इज बेसिकली वर्क व्हेन प्रोटोप्लाज्म वर्क इन अ यूनिट सेल, इन अ यूनिट कॉल्ड सेल. हमारे पास प्रोटोप्लाज्म जब किसी एक जगह पर काम कर रहा होता है तो बेसिकली वी हैव टू से दैट इट इज सेल, एंड सेल इज बेसिकली कंसिडर्ड एज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, बेसिक फंक्शनल unit of life. Got it? Now move to the tissues. Okay, different cell when perform a specific work. Okay, these are called tissues. जब हमारे पास different cell आपस में मिलते हैं तो वो basically हमारे पास जो है वो tissue कहलाते हैं. Okay, then different tissues when work on a project, or you have to say that कि एक ही platform पर जब different tissues हमारे पास जो है वो workout करते हैं, so they can form organ. Okay, like heart, brain, they all are organs. Okay, different organs when perform a specific function, जब ये किसी एक सिस्टम पर काम कर रहे होते हैं, बहुत सारे ऑर्गन, ठीक है, तो ये हमारे पास पूरा एक सिस्टम बनाते हैं, एंड द सिस्टम इज कॉल्ड ऑर्गन सिस्टम. ओके, एंड ऑर्गन सिस्टम, डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम कंबाइन दे कैन फॉर्म अ ऑर्गेनिज्म. ओके, नाउ फ्रॉम सेल, different cell combine to form tissues. Okay, different tissues combine to form organ, then organ system, and then organism. The whole are basically considered as the cellular level of organization. Okay, now move to the another level which is taxonomic level. देखिए, जब हमारे पास organism कोई एक तो होता नहीं है, human being
ऑर्गेनिज्म, कैट वो भी एक ऑर्गेनिज्म है, डॉग वो भी एक ऑर्गेनिज्म है, ट्री वो भी एक ऑर्गेनिज्म है। तो बेसिकली यहाँ पर अब क्या होता है, हमारे पास क्लासिफिकेशन स्टार्ट होती है कि किस ऑर्गेनिज्म को किस तरह क्लासिफाई किया जाए। तो हमारे पास जब हम क्लासिफिकेशन देते हैं, नेमिंग देते हैं किसी भी जो है वो ऑर्गेनिज्म को, तो क्लासिफिकेशन में जो बेसिक यूनिट हमारे पास आती है वो आती है स्पीशीज की। ओके, जो कि हमारे पास किस बेस पर होती है, बाय मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर लिविंग ऑर्गेनिज्म को हम जो है वो स्पीशी का नाम देते हैं, जो बेसिकली हमारे पास सिमिलर हो इन मॉर्फोलॉजिकल बेसिस। ओके, नाउ मूव टू द, अच्छा टेक्सोनोमिक के भी डिफरेंट लेवल होते हैं, जब हम इसका अलग से एक डिटेल में जो है वो टॉपिक अपलोड करेंगे तो फिर जो है वो उसमें आप इसको और बेटर जो है वो अंडरस्टैंड कर सकेंगे। ओके, नाउ पॉपुलेशन लेवल। पॉपुलेशन लेवल मीन द मेंबर्स ऑफ स्पीशीज लिविंग इन स्पेसिफिक हैबिटेट। अब यहाँ पर क्या है, एक स्पेसिफिक हैबिटेट में एक ही स्पीशीज से ताल्लुक रखने वाले बहुत सारे ऑर्गेनिज्म जब वहां पर रह रहे होते हैं तो वो पॉपुलेशन कहलाती है। लाइक एक ट्री है और उस ट्री में अगर बहुत सारे पैरट्स जो है वो रह रहे हैं तो बेसिकली वो कहलाएगा कि हमारे पास पैरट्स की पॉपुलेशन है। ओके, कैट्स की पॉपुलेशन है, ह्यूमन बीइंग की पॉपुलेशन है। ओके, तो बेसिकली वो क्या है हमारे पास कि बहुत सारे जो है वो मेंबर्स स्पीशी के एक ही जगह पर एक ही हैबिटेट में जो है वो रह रहे हैं, वो हमारे पास पॉपुलेशन कहलाती है। ओके, अच्छा ऑर्गेनिज्म के बाद हमारे पास पॉपुलेशन, पॉपुलेशन के बाद कम्युनिटी। अब क्या है, बेसिकली मेंबर ऑफ डिफरेंट स्पीशी। एक स्पीशी से बहुत सारे अगर मेंबर हैं तो वो तो पॉपुलेशन है। तो अगर मैं ये बोलूं कि डिफरेंट पॉपुलेशन व्हेन लिव इन अ हैबिटेट, सो बेसिकली दिस इज कॉल्ड कम्युनिटी लेवल। वो फिर कम्युनिटी कहलाती है कि उसमें हमारे पास डिफरेंट स्पीशीज या हम ये कह लें कि डिफरेंट पॉपुलेशंस जो है वो एक ही जगह पर रह रही होती हैं। जैसे हमारे पास जंगल हो गया, जंगल में हमारे पास जो है वो डिफरेंट स्पीशीज जो है वो रह रही होती है। हमारे पास जो है वो लाइन की स्पीशी चल रही है, टाइगर की चल रही है, कैट की चल रही है, ज़ेब्रा की चल रही है। तो डिफरेंट स्पीशी बेसिकली एक ही हैबिटेट में जो है वो रह रहे होते हैं, तो वो कम्युनिटी कहलाती है। ठीक है, अच्छा कम्युनिटी के बाद हम नेक्स्ट जो है वो लेवल की तरफ जब बढ़ते हैं तो हमारे पास आता है इकोलॉजिकल सिस्टम। इकोलॉजिकल सिस्टम इज बेसिकली जब हमारे पास किसी है यानी कम्युनिटी जब लिविंग और नॉन लिविंग, क्योंकि आपको पता है कि एक लिविंग थिंग नॉन लिविंग थिंग के बगैर नहीं रह सकते, इनका एक इंट्रैक्शन चलता है। हम अगर अपनी भी बात करें तो हमें जो है वो जिंदा रहने के लिए हवा चाहिए, पानी चाहिए, जो कि हमारा नॉन लिविंग थिंग पार्ट है एनवायरनमेंट का, जिसको हम एबायोटिक भी जो है वो पार्ट कहते हैं। किसी भी एनवायरनमेंट के दो पार्ट्स होते हैं, बायोटिक एंड एबायोटिक। ओके, तो एबायोटिक पार्ट और बायोटिक पार्ट आपस में मिलकर हमारे पास जो है इकोलॉजिकल सिस्टम यानी कि इकोसिस्टम बनाते हैं हमारा। ठीक है, जहां पर लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग जो है वो आपस में एक दूसरे के इंटरेक्शंस के साथ जो है वो जिंदगी गुजार रहे होते हैं। नाउ मूविंग टू द अवर लास्ट लेवल, बायोस्फीयर लेवल। ओके, बायोस्फीयर लेवल विच बेसिकली डिफरेंट काइंड्स ऑफ इकोसिस्टम। भाई हमारे पास जंगल भी एक इकोसिस्टम है, मैंने आपको बताया। इस तरह हमारे पास कुछ एनिमल होते हैं जो कि एक्वेटिक होते हैं। एक्वेटिक में हमारे पास कौन कौन आ गया जी, फिशेस, ओके, क्रैब्स, क्रोकोडाइल, ओके, और इनका जो नॉन लिविंग और डिफरेंट हमारे पास जो है वो प्लांट्स होते हैं जो कि एक्वेटिक प्लांट्स कहलाते हैं। ओके, सो व्हाट हैपन, अब इनका जो नॉन लिविंग पार्ट है वो क्या होगा हमारे पास वो होगा वो सॉइल, वो रॉक्स जो कि उस पानी के अंदर मौजूद होते हैं। इसके अलावा पानी खुद जो है वो नॉन लिविंग पार्ट है। तो ये भी एक इकोसिस्टम बना रहे हैं, एक एक्वेटिक इकोसिस्टम हो गया, लैंड का इकोसिस्टम हो गया, डेजर्ट का इकोसिस्टम हो गया। ओके, सो डिफरेंट इकोसिस्टम व्हेन कंबाइन दे कैन फॉर्म बायोस्फीयर। बायोस्फीयर मीन आवर अर्थ। ओके, जहां पर कोई भी लिविंग थिंग जो है वो एग्जिस्ट करता है। सो दिस इज कॉल्ड द लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम एटम टू बायोस्फीयर। ओके, थैंक यू। इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्यूरी आपके पास हो तो आप हमें वो कमेंट के ज़रिए बता सकते हैं ताकि आपकी वो क्यूरी भी दूर की जा सके। इसके अलावा हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, और बेल आइकन को साथ में ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि आगे आने वाली मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपको मिल सकें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।